Okay, in this video, we're going to understand how to find the area of triangle. There are two ways in which we can find out the area of triangle. One way is this, that if we have the base of a triangle and we have the height of the triangle as well, we can make use of the formula area equals to 1 upon 2 into base into height. But what if we don't have this height with us? ठीक है, यानी मेरे पास इस ट्राइंगल में हाइट तो नहीं है, ठीक है, I only have the base. But the examiner has given me the angle and another adjacent side to this angle. ठीक है, यानी मेरे पास इस angle के साथ दो adjacent sides given हैं. In order to find the area of this kind of a triangle, I can make use of the formula area equals to 1 upon 2 AB sine C. Now what are A, B and C? A and B are my adjacent sides of the included angle. Included angle किसको कहते हैं? Included angle वो angle होता है जिसकी दो adjacent sides मुझे पता है, ठीक है, उसको हम लोग included angle कहेंगे. सही, तो हमारे पास जब कभी भी ऐसी triangles आए जिसकी मुझे height ना पता हो, I can make use of the formula 1 upon 2 AB sin C. Now let's discuss a few examples जिसमें हम लोगों ने इस तरह के questions को solve किया हुआ है. Okay, I have to find the area of this triangle. I have been given an angle and the adjacent sides to it. ठीक है, so I can make use of the formula 1 upon 2 AB sin C to find the area of this triangle. ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा area equals to 1 upon 2. Now A and B would be the adjacent sides of the given angle. ठीक है, and this is known as the included angle. ठीक है, तो मेरे पास A would be 5, B would be 11. You can also swap A and B. आप A को 11 बना सकते हैं और B को 5 बना सकते हैं, आपकी मर्जी है. Sin C would be the included angle that is given to me, which is 75 degrees. So if I find out the answer, I'm going to get 0.5 into 5 into 11 into sine 75. My answer comes out as 26.6 centimeters squared. If all of my units are in centimeters, so मेरे पास answer centimeter squared में आएगा. Let's talk about this question. इस क्वेश्चन में मेरे पास दो साइड्स तो हैं given है. I have been given these two angles. Can I use any of these angles to find out the area of triangle by using the formula 1 upon 2 AB sin C? I cannot use any of these angles. क्यों? मसला क्या है? मसला ये है कि इस वाले एंगल 50 डिग्री के साथ मेरे पास ये वाली साइड तो है, लेकिन ये वाली साइड नहीं है. ठीक है, 55 डिग्री के साथ मसला क्या है कि मेरे पास ये वाली साइड तो है, लेकिन मेरे पास ये वाली साइड नहीं है. ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल टू फाइंड आउट द एरिया, क्योंकि मेरे पास इसमें दोनों एडजेसेंट साइड मौजूद हैं. ठीक है, सो हाउ वुड आई फाइंड आउट दिस एंगल? आई कैन मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला. आई नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. तो मैं इस एंगल x को निकाल सकता हूँ. तो मेरे पास हो जाएगा x प्लस 50 प्लस 55 equals to 180. So I'll get the value of x by subtracting 55 and 50 from 180. तो मेरे पास हो जाएगा 180 minus 55 minus 50, which is equal to 75 degrees. So the value of this angle is 75 degrees. ठीक है, अब मुझे ये एंगल मिल गया ना. नाउ आई कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल वेरी इजीली. तो मेरे पास हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ए बी साइन से. तो ए वुड बी 8.5, बी वुड बी 7.9 एंड साइन सी वुड बी द इंक्लूडेड एंगल. ठीक है, जो दोनों एडजेसेंट साइड्स के बीच में है. तो ये हो जाएगा 75 डिग्रीज. I have 0.5 into 8.5 into 7.9, so sine 75. The result comes out as 32.4 centimeter squared. ठीक है, अब ना यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों के पास अगर एक इंक्लूडेड एंगल हो और दो एडजेसेंट साइड्स हो तो हम लोग उससे एरिया निकाल सकते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर एरिया हो तो हम लोग अपना इंक्लूडेड एंगल निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हाउ वुड आई यूज द एरिया टू फाइंड द इंक्लूडेड एंगल? अब देखो मेरे पास यहाँ पे my included angle is this x. I have been given two adjacent sides for x, which is 40 and 100. I have also been given the area of this triangle, which is 1000 centimeter squared. मुझे ये एंगल की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा अपना वही फॉर्मूला लगाऊंगा, एरिया इक्वल्स टू 1/2 ए बी साइन सी. ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे एरिया की वैल्यू गिवन है, which is 1000. 1/2, what are A and B? A and B are my adjacent sides. So this would be 40 and this would be 100. So 40 multiplied by 100
मल्टीप्लाइड बाय साइन सी क्या हो जाएगा मेरे पास, जो ये इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है, 40 और 100 का, so I'll write x over here. Remember, I need to find the value of x, so I'll make sin x the subject, ठीक है. So this 2 will get multiplied on the other side, हो जाएगा 1000 multiplied by 2, and since this 40 and 100 are getting multiplied in the numerator, तो मेरे पास वहां जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएंगे नीचे आके. 40 multiplied by 100 equals to sin x. मेरे पास sin x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, sin x equals to 1000 into 2 divided by 40 into 100 and that comes out as 1/2. ठीक है. अब मुझे इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स लूंगा. मेरे पास हो जाएगा x equals to साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 मेरे पास होता है 30 डिग्रीज. ठीक है. तो वैल्यू ऑफ द एंगल इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. हम लोग अपने एरिया को यूज करते हुए इंक्लूडेड एंगल निकाल सकते हैं. अब सवाल यह है कि क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता था एरिया को यूज करते हुए? नहीं, मैं ये एंगल नहीं निकाल सकता. मैं इस वजह से नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास इस एंगल की दोनों एडजेसेंट साइड्स नहीं है. ठीक है. अगर मुझे इस एंगल की, इस अननोन एंगल की दोनों एडजेसेंट साइड्स पता होती तो मैं उनको यूज करते हुए और एरिया को यूज करते हुए ये अननोन एंगल निकाल लेता. क्या मैं ये एंगल निकाल सकता था? मैं ये एंगल भी नहीं निकाल सकता था. तो मैं सिर्फ वही एंगल निकाल सकता था जिसकी दोनों एडजेसेंट साइड्स मुझे पता होंगी. ठीक है. एंड दिस एंगल इज नोन एज द included angle. ठीक है. So note, area can only be used to find the included angle. Included angle के अलावा आप कोई एंगल एरिया के थ्रू नहीं निकाल सकते. ठीक है. Okay, so there is another question in which I have been given the area of the triangle and I have to find the angle QPR. पहले तो फिगर आउट करते हैं भाई एंगल QPR कौन सा एंगल है. एंगल QPR ना मेरे पास ये वाला एंगल है. ठीक है. तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है. अब मैं ये वाला एंगल कैसे निकालूं? मुझे एरिया दे दिया है. ठीक है. तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपको अगर एरिया दे दिया है तो दिस एंगल इज द इंक्लूडेड एंगल. ठीक है. और एरिया के थ्रू, एरिया के फॉर्मूला के थ्रू आई कैन फाइंड दिस इंक्लूडेड एंगल. ठीक है. लेट्स टेक दिस एज एक्स. ओके. तो मेरे पास हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए बी साइन सी. द वैल्यू ऑफ द एरिया इज 48. 1/2. अब ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी? ए और बी की वैल्यूज मेरे पास ये एडजेसेंट साइड्स की होंगी, 10 एंड 14. ठीक है. तो मेरे पास आएगा 10 14 इंटू साइन सी. अब सी क्या है मेरे पास? ये जो इंक्लूडेड एंगल है विच इज अननोन. ठीक है. तो ये एक्स हो जाएगा. अब क्या करना है, एक्स को, एक्स की वैल्यू निकालनी है और शो करवाना है कि वो उसकी वैल्यू 43.3 डिग्रीज के बराबर है. लेट्स डू दैट. तो मेरे पास हो जाएगा 48 मल्टीप्लाइड बाई 2. दिस 2 इज गेटिंग डिवाइडेड तो 2 आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 और 14 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है. 10 मल्टीप्लाइड बाई 14 इक्वल्स टू साइन एक्स. तो मेरे पास जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 48 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 24/35. ठीक है. आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू चाहिए है तो आपको x की वैल्यू निकालने के लिए साइन इनवर्स लेना पड़ेगा. आपको हो जाएगा साइन इनवर्स 24/35. ठीक है. एंड साइन इनवर्स 24/35 comes out as 43.29 degrees. And if I just round this off to one decimal place मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर, this will become 43.3 degrees. ठीक है. तो हम लोगों को यही शो करवाना था, एंगल के 143.3 डिग्री के बराबर है, वो हमने शो करवा दिया. सही है. सो एरिया के फॉर्मूला के थ्रू एक तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें एरिया गिवन है तो उसके थ्रू हम लोग इंक्लूडेड एंगल भी निकाल सकते हैं. ठीक है. इन दी अपकमिंग वीडियोस, sorry, in the next video I'm going to discuss all the past paper questions for sine, cosine rule, cosine rule and the area. ठीक है. तो do watch that as well. If you have any questions in this video तो आप उसको comments में please लिख दीजिए and I will try to answer all of those questions. ठीक है. Allah Hafiz.